Morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, Hi, good Dipti. morning. Good Welcome Good morning, back to morning. India. Good Yeah, morning, back to ma'am. India. Welcome All back. charged up. Morning, I was charged everybody. up when I left also. Charged up when I returned Yes. also. Good morning. So How is great. the Good Please weather morning, in come. Very ma'am. Thailand? good How is morning. the weather in Thailand, Dipti? Weather is just like in India, just like in Delhi and Jaipur. I mean, the Okay. temperature, it rains sporadically, but then it rains to become much more pleasant. But it's a Yes. cleaner place, zero pollution there. So Yeah, I beautiful. have been there. Nice. I have been Huh. there. My daughter is going on the first. That is why I was asking. Yeah. The weather is like, shorts and t-shirt. That's it. Okay. And they Yeah. can wear even a shorter one. Yeah. Actually like that. Yeah. Yeah. Okay. Thank you so But much. it is fun. There are lots of tourists there, lots of Americans and Russians right now. So it was looking like less of those people and more of the tourists there. But yet it was not crowded. It was like beautiful. Yeah. Okay. Thank you, Dipti. So there was like y'all had asked the question how to write affirmations. So I told you that I'll share what I do. Like my selected 9, there are so many, so I can read that for you just in case you want the idea. So what I've done is like when I had selected my 9, it was pretty much मतलब ऐसे जो सब सारे areas को encompass कर ले. It was not just like segregated to health. I mean there are certain this thing जो 9 में सब कुछ आ जाता है. सारे एरियाज आ जाते हैं like health and relationships and money and career and whatever it is that I'm doing, or even if I'm writing a course book, so even that would get covered in this only. So I can read that for you because लिखना तो मेरे लिए कल possible नहीं था, but then we can always refer to the YouTube recording and watch them again. इसीलिए मैं शुरू में कर रही हूँ ना, then you don't have to go through the entire recording. So my first that I do is I'm a magnet to all my desires. Now that pretty much is like so encompassing everything, because the moment I shoot my rocket of desire, I know that will fulfill ho jayega, because this is a constant affirmation I do, that I'm a magnet to all my desires. Second one I always do is my mind and body are always healthy. ये मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था. So my mind and body is always that they are mentally and physically fit all the time, so it's not just physically. Then the third one is I enjoy the best of 5 elements always, inside and outside. Okay, let's inside my life and outside. Then the fourth one is I am always surrounded by the divine protection and power. Okay, so this is what it is. I'm always surrounded by the divine protection and power. So that way, normally लोगों को होता है ना, नजर लग जाएगी, हो जाएगा, हो जाएगा तो पहले से ही. Then the next one is I am always surrounded by beauty, abundance, and luxury. Then the next one is life is beautiful, easy, and effortless. Then the seventh one is I am successful in all the areas of my life. Then the next one is my income is constantly increasing and I always have a divine surplus. And then the last one is I am blessed to transform every life I touch with love light. So this is like my personal thing. In case anyone wants to have anything else, they can write that. So these were my 9, and sometimes when there are any challenges, then I focus and I do concentrated gratitude in that area more. Okay, like yesterday when I came back, so I had, before going, I had written a declaration to the universe before going to Thailand. It was also an official trip of sorts because there was a conference also, while at the same time I extended my stay, went a day early and came back 3 days later after the conference. So usme I had made a declaration before I left that you can also do before making any trip or any venture. And उसमें मैंने लिखा था of sorts that dear universe, thank you for my phenomenal Thailand trip, which was so beautiful, easy and effortless. And thank you that I got to see the best of 5 elements in every sense. Thank you that I enjoyed the best of health,
and got the best of massages from the best masseurs. So this was written in the declaration because I love having a foot, neck, head massage, and like foot massage especially, because in Thailand everybody has to walk a lot, and that it should unfold, like my trip is full of unfoldings, magics, and miracles. So actually my trip was full of unfoldings, magics, and miracles, unfolding in a way that subliminally I had this in my mind that I would do something like a sport, but हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझे नहीं पता था that I'll go down into the waters or anything like that, कि मैं sea bed पे gratitude walk करूंगी. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, because sometimes you have to leave things, so I always say this, that there were beautiful unfoldings, magics and miracles. So that happened, and everything that I had written in my declaration, that all my pictures were looking so beautiful, so they did. All my photos have come out so well. Yesterday I was sifting and sorting because there were thousands of them, so that came out so well. The conference went very well, and every life, which is my constant affirmation, that I'm transforming every life that I touch. So if I say something, it will happen. So this so I'm blessed to be a blessing, and I always consider myself a channel of blessing. So there also I wrote that like I whatever that I could touch every life, and transform them by this power of gratitude that we have. So yeah, this is how it was, and I am always surrounded by beautiful, and ye bhi likha tha maine, that I'm surrounded by beautiful and lovely people and happy people. So you won't believe that even my cab drivers, they were so beautiful, that one of the cab drivers said that I'm so happy that आप India से आए हो, हम लोगों को तो he was a Thai. So he said that we should look up to Indians because यहाँ पे सारा जो tourism है that comes here because of the Buddhism and the Buddhist gods, like 4 bade temples which attract a lot of tourists, और उसका entry fees is 200 Thai baht per person. 200 Thai baht would be equivalent to 500 rupees here. So there are 10 people going, it will be like 500 into 10. So सब में ऐसे ऐसे होते हैं, तो वो लोग बहुत, और tourism flock करते हैं वहाँ पे, tourist. So they are making a lot of money. So they say that हमारा पूरा tourism ही Buddhism की वजह से चल रहा है, and Buddhism originated in India, and Gautam Buddha had actually come from there only. So we owe a lot of like gratitude to all of you who are from India. So like these kind of things, and lovely people guiding us in the right way. So one very important thing is people that they don't do, क्योंकि मैंने ये लिखा था ना that this trip is full of unfoldings and magics and miracles for me. So how it happened is that I discovered a place जो मैंने कभी बहुत पहले कहीं पे देखा था YouTube पे. Discovered a place which was small streets, that were authentic Chinese streets where people don't go normally. कोई नहीं जाते tourists, वहाँ पे थोड़े से Americans थे बस, and I think I was there. वहां पे one can hire a bicycle also and go around that. छोटी छोटी सी पतली पतली सी गलियां हैं. And so I'll make a video and share with all of you. You should actually see. This is not a place which is frequented, but I was mesmerized by the beauty of that place. I got to see the ancient Chinese culture. So that was an unfolding. My walk on the seabed, मतलब पानी के नीचे जो धरती होती है उसके ऊपर चलना, was an unfolding because I did not know. So when you really declare that a happy and phenomenal trip in every sense, it was like truly phenomenal. And because ये जो affirmations हम करते हैं that I'm successful in everything that I do in all the areas of my life, so it was so successful. There could have been like my kind of a person would never have gone into the waters, or like even if it was walking those streets and वो छोटी छोटी सी जगह पे पतली पतली सी गलियों में से जाके, I was awestruck. When you see the pictures, you will also be mesmerized that ऐसी कोई जगह भी हो सकती है. और बीच बीच में छोटे छोटे यूरोपियन कैफेज बने हुए थे, छोटे छोटे थाई कैफेज, ब्यूटीफुल म्यूजिक प्लेइंग देयर. अगेन वहां पे थाई लोग नहीं थे, वहां सिर्फ थोड़े से अमेरिकन ही बैठे हुए थे, और वो बिल्कुल ही क्रीक के साइड में था जो रिवर बेड होती है. So it was like that. So amazing unfoldings and things that we could do. In fact, even in Goa, when we were there, we went to the old Goa when Ami, Poonam, Meena and Anju had gone this very month itself. So इसी महीने में 2 मतलब phenomenal trips हुई हैं. उसमें भी ऐसा था कि हम वो गलियों वाली जगह पे गए थे. हालांकि वो बहुत broad गलियां थी, but Fountain House नाम की जगह होती है. So now I recommend that we went there.
for a while. We couldn't do too much of it also, but yeah, we did go there and it was absolutely beautiful. And we did a lot of local food and local things and sometimes touristy. So that was also so phenomenal. So that's why I always recommend that whenever you are, on any trip or any walk, even if it is doing anything, always make a declaration to the universe. You can write a letter, you can write a letter of intent as to what outcome you want to see, as if वो already हो चुका है, और उसके साथ खूब सारा gratitude add कर दो, that thank you, that so वो बिल्कुल ट्रिप मेरी वैसी थी एग्जैक्टली, लाइक इवन द फ्लाइट्स गोइंग एंड कमिंग, लाइक मेरी आने वाली फ्लाइट 1 घंटा पहले पहुंच गई थी. इट स्टार्टेड लेट फ्रॉम देयर, from Bangkok, but 1 घंटा पहले पहुंच गई थी. So it was like an amazing flight experiences आते और जाते हुए दोनों time, मतलब a lot of experiences like that. So that is how it was. So this is what I urge, that we have this power of gratitude. अब तो हमें कोई भी चीज को, कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें हमको बहुत ही बढ़िया आउटकम चाहिए, अगर किताब भी लिखो तो छोटी छोटी चीजों में डिक्लेरेशन पहले से ही कर दो कि थैंक यू यूनिवर्स दैट आई कुड राइट द बेस्ट कंटेंट व्हिच बेनिफिटेड सो मेनी पीपल, एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट माय बुक इज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल सो दैट दे कुड स्टडी एंड मेक अ करियर आउट ऑफ इट, ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ. थैंक यू. सो दिस इज व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट टू डू, ग्रैटिट्यूड के साथ डिक्लेरेशन कर दो, द थिंग एग्जैक्टली कम्स टू बी लाइक दैट, in fact better. So you ask for little and universe gives you much more. It is basically like that. So your feet take you there. जब मैं वहां पे गई थी तो मैंने ये भी सोचा था, मुझे ना एक फेस क्रीम चाहिए थी जिसमें ग्लूटाथियोन होता है. ग्लूटाथियोन एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है. So I wanted a face cream with glutathione because, so that कुछ भी वो pollution जो face पे हो रहा है, it's taken care of. So, I landed at a place and I didn't have to search for it. I was standing at, a store. Right in front of me was, that cream which said that face cream, this hydrating 10x more glutathione. And of course, वो थोड़ा उसमें था, में लिखा हुआ था, तो समझ में नहीं आ रहा था. But glutathione समझ में आया था, 10x power उसमें ज़्यादा ही समझ में आया था, beautiful shiny moisturizing cream ये समझ में आया था. So then I immediately took it because your feet take you to the place that you're seeking. कहते हैं ना कि जिस चीज को आप सीख कर रहे हो, actually वो आपको सीख कर रही होती है. So when the students are ready, then the mentor appears, अपने आप से. So whatever we are seeking is actually seeking us. So those countries and the places are calling us. It is not that we are going there. And it is always like that. The journey of gratitude is so beautiful. लेकिन इसमें थोड़ा सा immersive और रहना पड़ता है, instead of like everything, especially when things are going bad. So the game of life is a game of boomerang. So we all know what boomerang is. हम उसको फेंकते हैं और वो वापस हमारी तरफ आ जाता है. So this game of life is a game of boomerang. Whatever we are giving out in terms of thoughts and words and actions and emotions and feelings, everything comes back with astounding accuracy. और बहुत जल्दी वो वापस आ जाता है. छोटी छोटी चीजों में भी अगर आप कुछ बोल दोगे ना, मतलब ऐसी कोई चीज, तो वो एक्चुअली जब इमोशंस के साथ उसको अटैच करते हैं तो वो सही हो जाती है. And that is how life is like. So थोड़ा और immersive रह के अगर हम ये gratitude की practice करें ना, तो हमको ये जो छोटे छोटे impediments और ये सब आते हैं ना, तब भी नहीं होंगे. जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो और आपका लगेज भी खो जाता है रास्ते पे, है ना, सपोज आप जा रहे हो यहाँ से अमेरिका और लंदन या कहीं पे और पे, आपका लगेज इधर उधर हो जाता है. सो वो आपके छोटे छोटे टेस्ट होते रहेंगे, उनको ना टेस्ट की तरह ही करो. उनको ये मत सोचो कि ओ गॉड अब ये कैसे होगा. मतलब पूरा फ्यूचर हम डिजाइन कर लेते हैं जस्ट उस बेसिस पे कि एक बैग नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो टेस्ट है आपका, वो मिलेगा जरूर. सो यूनिवर्स इज नेवर टेकिंग ऑफ एनीथिंग दैट्स योर्स फ्रॉम यू, नथिंग इज गोइंग टू गो ऑफ. लेकिन वो टेस्ट है, तो उसमें हम फेल हो जाते हैं ना, तो हम जिंदगी के रास्ते में फेल हो जाते हैं. तो ये चीज हमको फिर ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये टेस्ट हमारे एक दिन में भी 2 3 4 बार होते रहेंगे. ठीक है. सो उसमें अगर जब हम at that point of time when you've lost your luggage and you say thank you so much universe, I know that my luggage is there, and I know that by the divine power it's going to come back to me. So then life becomes easy. But if we start परेशान होना and this and worry and fear and this, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, then everything goes haywire. So ये बहुत immersive practice होती है. मतलब it is a way of life. I would not even say it's not a religion, it's not nothing, it's just a way of life of gratitude. ठीक है, थोड़ा और immersive, थोड़ा और seriousness के साथ अगर हम इसको करें
और ध्यान रखें अपने थॉट्स, वर्ड्स, कर्मास और इमोशंस के साथ में अगर आपने कुछ सोच लिया, बोल दिया तो वो सच हो जाता है। तो ये ऐसी चीजें अगर हम करें ना तो हमें थोड़ा माइंडफुल रहने की जरूरत है। जो कल सुनैना ने बोला था ना कि अगर आप नाव में रहोगे तो थोड़े टाइम में प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली, आपकी आदत पड़ जाती है फिर आप परेशान हुए, फिर आप नाव में हो कि नाव में अभी क्या है, देखो अच्छे से आराम से रूम में बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं, सामने लैपटॉप है, आप सब हो, बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये नाव में रहने की जब आपको आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, कोई भी चीज आप मेडिटेट करोगे ना 10 मिनट्स अगर रोज, तो 1 महीने तक दिमाग इतना इधर उधर, कहते हैं ना दिमाग के घोड़े दौड़ने लग जाते हैं, सो इट्स लाइक दैट। सो वो सब इधर उधर दौड़ते रहेंगे, बट कम बैक टू नाउ, ओके, इट इज ओके टू थिंक। सो वो मेडिटेट में मास्टरी आ जाएगी आफ्टर सम टाइम, एंड आपका you will be able to connect to the higher consciousness। और बस ऐसे ही अपने अपने सोल को थैंक यू बोल बोल के आगे बढ़ते जाओ। और जो भी चीज हमें डिजायर भी है, डिजायर मांगो, अंदर आत्मा है वो सुन रही होती है, सारे डिजायर्स पूरे होंगे, है ना। सो अपने आत्मा, और कहते हैं आत्मा ही परमात्मा होती है। तो फिर वही है, बस वही है सब कुछ जो है हमारे पास, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इतनी डिटेल में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। और सबकॉन्शियस माइंड ही सुपर कॉन्शियस होता है, क्योंकि वो हिंदुइज्म में भी यही लिखा हुआ है ना, आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा है ना हमारे पास, और परमात्मा हमारे हर एक कण में है, हमारे हर एक सेल में। तो हमको चिंता किस बात की है ना, हमको चिंता की कोई बात ही नहीं है। बस जिस तरह से अपना पॉजिटिव रहो, और ये एक प्रैक्टिस है, इट नीड्स अ मसल, अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग। सो यू डू दैट एंड यू सी लाइक expect, be excited for all the unfoldings that the universe has to offer. So yeah, that's about it. So today's chapter, now we go to day 5, money magic money sorry. So magic money is again, अगर पैसे हमारे पास या तो कम है या आते हैं लेकिन टिकते नहीं है, ठीक है, तो हमको सर्टेन चेंजेस अपनी जिंदगी में करने की जरूरत है। या तो कम पड़ रहा है पैसा, मतलब आप चाहते हो कुछ करना लेकिन आपके पास उसके लिए इनफ पैसे नहीं है, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके लिए पैसे नहीं है, या आपको कॉन्स्टेंटली पैसे, या आप पैसे से इतना ज्यादा अटैच हो गए हो कि आपका खुला हाथ ही नहीं हो रहा, आप उसको स्पेंड ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो तब हम सब के लिए ये मैजिक मनी है। और पैसा अगर आता और टिकता नहीं है तो तब भी मैजिक मनी में कुछ कुछ ट्रेड्स हमको बताए जाएंगे कि हमारा किस तरह का बिहेवियर और रिलेशनशिप होना चाहिए पैसे के साथ। और इसमें एक बैग पड़ा हुआ है, उसमें से ये बैग यूनिवर्स का बैग है बाय द वे, ठीक है। इसमें आप देखोगे कितना ठूस ठूस के पैसे भरे हुए हैं, और इसको खोलने का तरीका होता है थैंक यू बोलना। जैसे ही आप इस बैग को खूब सारा थैंक यू बोल देते हो, यानी कि यूनिवर्स का जो कंटेनर है जिसमें पैसे भरे पड़े हैं, ठीक है, तो इवन करोड़ों रुपए इज नॉट इवन इक्विवेलेंट टू एक तिनका, ठीक है। इसलिए मतलब कितने भी, अगर आपके पास 100 करोड़ भी आपको अभी चाहिए तो वो एक ड्रॉप के बराबर भी नहीं है आराम से। सो दिस इज हाउ द मनी इज गोइंग टू पॉप आउट इनटू आवर लाइफ विद ग्रेटिट्यूड एंड ऑल दैट, यू कैन सी द स्पार्कल्स देयर, वो सब थैंक यू के स्पार्कल्स हैं। सो यस शिवानी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Hi, good morning. Hi, morning. Day 5, Magic Money. Quote, gratitude is riches, complaint is poverty. Unquote. Christian Science Hymnal. If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude, and the money in your life can never improve. It will worsen. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have, so the money in your life can magically increase. Quote, whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from him or her. Unquote.
Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you're grateful, you will be inspired to do it. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, "Thank you," with all your heart for each instance. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? Did you go on any vacations when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Did you go to the dentist? Did you have essential items that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? All of these things cost money, and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you received that equate to hard-earned money. Be grateful for every single instance and memory because when you can feel sincere gratitude for the money you've received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. "Thank you for all the money I've been given throughout my life." Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you've been given in your life. The more sincere you are, the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money with you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you've been given, never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you've been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it.
each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you just received. Magic practice number 5, magic money. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Number 3, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, thank you, with all your heart for each instance. Number 4, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big, bold letters. Thank you for all the money I've been given throughout my life. Number 5, take your magic dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you've been given. Number 6, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you've been given in your life. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Shivani. We all love listening to your voice. Thank you so much. Yeah, so when we talk about magic money, in a nutshell, iska matlab hai, like, complain is poverty. Okay, so complain about money तो as such हम करते नहीं है, लेकिन वरी हम बहुत करते हैं. पैसे की चिंता, पैसे को लेके इनसिक्योर होना, पैसे को लेके फेयरफुल होना कि ठीक है आज है कल होगा कि नहीं होगा, इस चक्कर में हम बहुत वैसी चीजें करते हैं. मतलब बहुत ज्यादा इतने सारे इंश्योरेंसेस लेके रखते हैं हेल्थ के लिए. मतलब पहले से ही, मतलब किसी भी ट्रिप पे जाने के पहले अगर आप कोई दवाइयों का एक बॉक्स अंदर रख रहे हो, इसका मतलब है आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर ली है दवाई. ठीक है, मतलब ये नॉर्मली हमारे साथ हो जाता है. पैसे को लेके फ्यूचर के लिए हम इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि कभी कभी ये पॉलिसी और वो पॉलिसी, आज के लिए पैसे नहीं है लेकिन 5 पॉलिसी ले रखी है कि पता नहीं कल को होगा कि नहीं होगा पैसा. ऐसा ऐसा होता नहीं है. मतलब वो सब मैनिफेस्टेशंस होते हैं. इतने सारे पॉलिसीज, मतलब इतने इनसिक्योरिटी फ्यूचर के लिए कि 5 पॉलिसी ले रखे हैं. ठीक है, ठीक है. आई ऑल्सो टेक इट, बट आई टेक इट टू सेव टू मच ऑफ टैक्सेस, बिकॉज जब ओवरफ्लो ऑफ टैक्सेस होता है तो उसके लिए, बट नॉट कि पता नहीं कल को क्या होगा. अपने आज में रहना सीख लो, ये बहुत जरूरी है. तो फिर पैसे की वैसी चिंता खत्म हो जाती है. ठीक है. दूसरी चीज कि पैसे के लिए आज जो हमारा स्टैंड है, वॉट एवर सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ, पैसे अगर आज थोड़ा कम लग रहा है, पैसा आपके जिंदगी में मुश्किल से आ रहा है, इसका मतलब ही है कि आपने पास्ट में पैसे को लेके या तो किसी का पैसा लेके लौटाया नहीं है, या आपके जेब से बड़ी मुश्किल से किसी को परेशान कर करके आपने पैसे दिए हैं, या पैसे के लिए एनवियस थॉट्स हुए हैं. मतलब आपको जेलसी हुई है अपने रिश्तेदारों से जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे और बहुत आसानी से पैसे आते थे, और आपके पास उतनी आसानी से नहीं आते थे, तो रिजेंटमेंट था, जेलसी थी. ये सारी चीजें पैसे को लेके पास्ट में हुई है. बट ठीक है, हमको पास्ट में ड्वेल करना नहीं है, और इन सारी किताबों ने हमको बहुत अच्छे से सिखाया है कि हमको पीछे मुड़कर ज्यादा जिंदगी में देखना नहीं है. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो नाउ है बस, और इस नाउ में आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन इस वक्त आप किस फ्रीक्वेंसी या किस इमोशनल कंडीशन में हो. उस बेसिस पे आप अपना नेक्स्ट मोमेंट क्रिएट कर रहे हो, एंड देन नेक्स्ट मोमेंट, एंड देन नेक्स्ट मोमेंट, लगातार हम क्रिएट कर रहे होते हैं. ये जो पास्ट में जो हमने कंप्लेंट्स किए हैं, आज बस अभी हम 12 चैप्टर तक हम अपने पास्ट को ही क्लीन अप कर रहे हैं. हम अपने ग्राउंड को बहुत फर्टाइल बना रहे हैं, उसमें मैन्योर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसको लाइक बहुत अच्छे से फ्लो कर रहे हैं.
वो हम कर रहे हैं अभी। तो इसके लिए जो सारे गड्ढे हैं वो हमको भरने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आगे की जिंदगी आगे कैसे चलेगी। तो इसीलिए अब हर चैप्टर में हम पास्ट में जा रहे हैं, है ना। जैसे कल भी हमने जो हेल्थ वाला किया था, तो हमने एक एक बॉडी ऑर्गन को, मतलब जो भी पास्ट में किया, फिर हमने खूब सारा थैंक यू बोला। हमको पता नहीं है कि हमने मे बी ऐसा बोला हो, मेरे पीरियड्स में बहुत पेन होती है, मेरा ये होता है, तो हमने अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बहुत कुछ ऐसे बोला और बार बार उसको वॉइस किया है ना। तो इतनी ज्यादा एनर्जी उस चीज में गई हुई है दैट हर बार जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, एनीथिंग रिलेटेड टू यूट्रस और व्हाटएवर, तो कुछ ना कुछ आपको ऑब्स्टिकल लगता है या कुछ वहां पे ब्रेक डाउन एरिया हो जाता है आपका। तो इसी तरीके से कोई भी चीज को हम एनर्जी, सो अब हम आज पास्ट में एनर्जी सारी डालेंगे, अपनी फोकस्ड एनर्जी ऑन और एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने कंप्लेन की तब हमको नहीं पता था कि लाइफ किस तरह से चलती है, कौन सी एनर्जी होती है ग्रेटिट्यूड, इतनी डेप्थ में ग्रेटिट्यूड, ये सब हमको पता नहीं था। हमको थैंक यू का मतलब बस इतना ही पता था तब तक कि हमको कोई हमारे लिए कोई कर रहा है तो हमको थैंक यू बोलना है, अगर हमको कुछ दे रहा है तो हमको थैंक यू बोलना है। हमको नहीं पता था कि हर चीज हमको हवा के लिए भी थैंक यू बोलना है, मतलब इतनी इमर्सिव डेप्थ पे हमको नहीं पता था पहले, है ना। सो अभी हम पास्ट में जहां जहां से बचपन से, इसमें लिखा हुआ है दैट टेक सम टाइम आउट ड्यूरिंग द डे, सिट एंड थिंक थ्रू, बचपन से लेके अभी तक, मतलब जब तक आप बड़े नहीं हो गए और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो गए या आपकी शादी नहीं हो गई, तब तक जहां जहां से भी ऐसी चीज आई जो पैसे की वजह से आई, बचपन से बैठ के आज बस पैसे के बारे में सोचना है। बिल्कुल पैदा हुए थे, ठीक है, जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी उसकी कुछ पेमेंट होगी, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स ने की थी, उसके लिए थैंक यू, या ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी, जिसने भी दिया था, आपको थैंक यू फील करना है कि मैं इस दुनिया में आई लेकिन इसके पैसे किसी और ने दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लगातार जो आप पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, वो जॉनसन बेबी क्रीम एंड लोशंस एंड पाउडर एंड कपड़े एंड शूज एंड वुलन क्लोथ्स, जो सारी चीजें यूज हुई हैं, और उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, उस पैसे के लिए जिससे आप इतनी कंफर्टेबली और इतनी अच्छी हेल्थ में बड़े हुए हो। ठीक है, फिर हर बार डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर की फी पेरेंट्स ने दी होगी या जिसने भी दी है, जिसके साथ भी आप रहे हो, उसके लिए ढेर सारा थैंक यू। ठीक है, फिर फिर बड़े हुए, फिर वो वॉकर वाली वो जो वॉकर होता है जिसमें चलते हैं, वो खरीद के दिया पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने। फिर मे बी कोई सेरेमनी हुई होगी सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे मतलब गिफ्ट्स आए होंगे पैसे से, जो ऑफ कोर्स आप पे यूज हुए होंगे। हर बर्थडे पे पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज द बर्थडेज, एंड हर बार बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार आते थे, आपको पैसा, मतलब वो मिलता, पैसे वाली चीजें मिलती थी, बर्थडे गिफ्ट्स, उसके लिए थैंक यू बोलना है। फिर आपकी ट्राइसिकल आई, फिर आपकी बाइसिकल आई, बाइसिकल भी अलग अलग हाइट्स की आई, पहले छोटी वाली आई, उन सब के लिए। फिर स्कूल गए, स्कूल की फीस, इतने सालों तक स्कूल और यूनिवर्सिटी की फीस पेरेंट्स ने दी, हमने शायद उस डेप्थ में अभी तक उनको थैंक यू बोला नहीं है। तो आज बस पूरी ऐसी चीजें सोचो, छोटी छोटी चीजें निकालो कि आपने कोई म्यूजिकल, आपने गिटार बजाना सीखा हो, या आपने कोई कुकिंग का कोर्स किया हो, जिसके पैसे ऑफकोर्स पेरेंट्स ने दिए थे, या आपके दादी ने या नानी ने। हर बार आप नानी हाउस जाते थे तो वहां से आपको या तो गिफ्ट मिलते थे, या नानी आपको में भी समोसे या जलेबी खाने को पैसे देती थी। ठीक है, सो यू हैव टू से थैंक यू एंड फील अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि मतलब वो तो अर्न भी नहीं करते थे उस टाइम, है ना, हमारी दादी और नानी अर्न क्या करती थी, बट स्टिल हमेशा कभी वो ऑरेंज कैंडीज खाने को मिलती थी, कभी ऑरेंज बार मिलती थी, कभी पैसे मिलते थे, कभी कोई चीज खरीद के ले आते थे जो आपकी फेवरेट होती थी, गिफ्ट्स मिलते थे। तो वो सारी चीजों के बारे में, और ये तभी होगा जब आप शांति से एक जगह बैठोगे और सोचोगे, व्हेन यू सिटिंग एट वन प्लेस, जब मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, जब मूवमेंट हो रहा होता है तो हमारा सिर्फ 30% ब्रेन यूज हो रहा होता है, 70% उस मूवमेंट में या इधर उधर देखने में जाता है। इसीलिए फोकस एनर्जी के साथ हमको ये करना है, बिकॉज ये बहुत क्लियर है कि जितने डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड आएगा, उतनी डेप्थ से आपकी लाइफ भी चेंज होगी, उतनी इंटेंसिटी से, है ना। तो इसलिए आज हमको वो मोमेंट में भी जस्ट 10 minutes यू कैन टेक आउट फॉर योर सेल्फ, सिट एट वन प्लेस जहाँ पे बहुत काम हो, आप मे बी पार्क की किसी बेंच पे बैठ सकते हो, अगर मतलब घर में बहुत मूवमेंट्स हो रही हैं या कुछ, या फिर कहीं और जाके शांति वाली जगह पे आप लेट के सोच सकते हो, बट लेट के फिर नींद नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए आप बैठ के सोच सकते हो, या जैसे भी आपको करना है। ठीक है, अपने लिए आज वो टाइम निकालना बहुत जरूरी है, और ये सुबह करने वाली प्रैक्टिस है, इसमें लिखा हुआ है सुबह करना ही है, तो सुबह करना ही है।
एंड किसी भी टाइम, मतलब यू कैन डू इट बिफोर 12 o'clock नून, उसके पहले थिंक थ्रू ऑल द थिंग्स, और बहुत डिटेल में आप वो चीजें सोचो जहाँ पे, मतलब इवन इफ इट इज अ शैम्पू एंड अ टूथब्रश और गीजर और कूलर और एसी, बेडशीट, बेड कवर्स, खाना पीना ऑफ कोर्स, मतलब और कैंटीन के पैसे, आपकी शादी में जो इतने सारे पैसे खर्च हुए हैं, पेरेंट्स हैव गिवन देयर बेस्ट टू गेट यू मैरिड, मतलब वो पूरा शादी का वो जो सेटअप होता है वो करना, शादी में 50 चीजें होती है, एक वैनिटी केस होता है, सब मेकअप का सामान मिलता है, लॉन्ड्री मिलती है, बाहर पहनने के कपड़े मिलते हैं फैंसी वाले, सिंपल सिंपल भी मिलते हैं, अलग अलग चीजें, अलग तरह के शूज मिलते हैं, बहुत तरह के बैंगल्स एंड इयररिंग्स एंड दिस एंड लाइक इतनी सारी चीजें उस पैसे से आई, तो उस पैसे के लिए और उन लोगों को जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देने की जरूरत है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वेकेशंस पे जो हम गए, पीपल हैव गॉन टू वैष्णो देवी, कहीं इधर उधर जो वेकेशंस आपने किए हैं जितने भी, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। हर बार आप फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जाते थे, पैसे तो पेरेंट्स ही देते थे ना, तो उन सब के लिए हर चीज सोचना डेप्थ में, आज बस यही वाली आज की प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद जब आपने सोच लिया, अब आपको एक अपना इन मतलब करेंसी लेनी है, जिस भी कंट्री के आप हो, वी आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो जिस भी कंट्री के आप हो वहां की करेंसी लेनी है, और वो नोट होना चाहिए, लाइक द पेपर नोट जो होता है, उस जितना बड़ा नोट है उतना ही बड़ा उस पे व्हाइट कलर की पर्ची उस पे आपको चिपकानी होगी, ग्लू स्टिक से आप चिपका लेना। ठीक है, सो आपने दैट मीन्स दैट उसकी एनर्जी मर्ज कर दी है, और अब उस पे लिखना थैंक यू फॉर द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, सो पहले तो आपने वो पूरा अपने अंदर एनर्जी की, उसके बाद आपने ये नोट पे ये लगा के किया। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, और इस नोट को अपनी फिंगर टिप से पकड़ना है सुबह एंड शाम को, और थैंक यू फील करना है कि पास्ट में इतने हेल्दी तरीके से आप इतने, मतलब सब कुछ इतना सारा पैसा आया, इतना मतलब आई थिंक करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, कि आप जिस भी स्टैंड पे आज यहाँ खड़े हो, आप अगर पीछे मुड़ के देखो बचपन से लेके अभी तक, तो उस सारे पैसे को थैंक यू, और उन लोगों को थैंक यू जिन्होंने आप पे पैसे खर्चे। ठीक है, तो ये सारा हमको ये करना है मॉर्निंग एंड इवनिंग में, वो पकड़ के अपने फिंगर टिप से नोट फील करना है, तो उस वक्त बस थैंक यू फील करना है, थैंक यू बोलना है। और ये जो भाई आप जो बनाओगे नोट के ऊपर चिपका के, इसको आप अपने साथ ही रखना, अपने वॉलेट में रखना, तो हमेशा वो एनर्जी आपके वॉलेट में रहेगी और आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी आएगा। और या फिर आप अपने जहां पे भी रखना, उस तरह करके कर सकते हो। तो हम क्योंकि बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरा एक ऑफिस में सामने लगा हुआ है, एक मेरे बैग में रहता है, और एक मेरे विजन बोर्ड पे लगा हुआ है, तो 3 जगह है। बाकी समटाइम्स जो होता है, क्योंकि हमको फ्रेशनेस लानी होती है, तो समटाइम्स आई जस्ट टेक ऑफ वो वाइट वाला जो होता है ना, उसको मैं हटा के फिर जो भी गार्ड्स या किसी को वो नोट दे देती हूँ। जैसे नॉर्मली मैं 100 रुपए पे लगाती हूँ इसको, तो 100 रुपीज आई गिव इट टू द गार्ड, अपना पुराने वाले निकाल के, क्योंकि आज नया है तो आज तो फ्रेश बनाना पड़ेगा, है ना, तो वो फ्रेश वाला बना के पुराना वाला किसी और को दे भी सकते हो, but you can keep it at multiple places because that's just a reminder that you have to be very very grateful for all the money that was spent on you in the past, है ना। सो एंड हर बार, मतलब जितनी बार भी आपको देखोगे ना, दिल से थैंक यू निकलेगा। सो इट इज लाइक दैट। सो या दैट्स द प्रैक्टिस। और सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स आपकी होंगी, जिसमें आप 10 ब्लेसिंग्स लिखोगे, उनको दोबारा से रीड करना है, और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और दिन की ये प्रैक्टिस है, मतलब सुबह 12 बजे के पहले ये कर लेना, सिट थ्रू एंड थिंक अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स जिसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। फिर ये बिल बनाना है और उस पर्ची पे लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ। और फिर इसको सुबह भी उठा के ऐसे सोचना है, सुबह दोपहर और फिर रात को एक बार, और एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आज बहुत बार भी आप निकाल के थैंक यू बोल सकते हो पैसे को। ठीक है, और पैसे से खूब प्यार करो, पैसे को बोलो आई रियली लव यू, वैसे भी जनरली ऑल्सो, है ना, जब भी पैसे की बात हो तो कभी आप बोलो आई लव यू, आई रियली लव टू हैव यू इन माई हाउस, इन माई वॉलेट, इन माई लाइफ ऑल द टाइम। थैंक यू फॉर मनी फॉर रेनिंग ऑन मी, जो चीज मुझे करनी होती है मैं पैसे से, तो पैसा एक एनर्जी है, तो जब ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आती है ना तभी पैसा आएगा। जब तक कंप्लेन की एनर्जी रहेगी तब तक पैसा नहीं आता, आता भी है तो चला जाता है वापस।
तो इसीलिए पास्ट को इरेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पैसे से बहुत प्यार करो, and always be in a good frequency, that is frequency of gratitude, तभी पैसा आता है, ठीक है। और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है, होल्ड दैट मैजिक रॉक इन योर हैंड एंड से थिंक थ्रू द डे, और उसमें से बेस्ट चीज निकालो, पूरे दिन भर में क्या हुई उसके लिए थैंक यू बोलो और फिर सो जाओ। So that is the practices for today. And before we go to the other book, I would like to just announce something, that from 3rd of September, so 3rd September is a very auspicious day in terms of number, 333 portal वाला दिन है वो, तो हम 3rd सितंबर से एक और ग्रुप शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम मॉर्निंग मैजिक करते हैं, विच ऑफ कोर्स आई टेक व्हेन आई एम अराउंड मोस्टली। सो उसके अलावा हमारा शाम को भी एक सेशन होता है जो बच्चों के लिए होता है, फॉर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, द मैजिक फ्यूचर ग्रुप, जो 7:30 to 8 रोज होता है। अब हम तीसरा शुरू कर रहे हैं मैजिक ट्रेजर ग्रुप के नाम से, फॉर ऑल द सीनियर सिटीजन्स। Okay, and it will be a very good, high vibration group, and that will be IST 8:15 to 8:45, क्योंकि मॉर्निंग वाला हमारा शाम वाला बच्चों का सेशन कभी कभी 8-8:05 तक चल जाता है, कभी 8-10 भी हो सकते हैं, इसलिए उसका टाइम हमने 8:15 to 8:45 किया हुआ है। वो सारे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है और उनके फ्रेंड्स के लिए, and that will start, the first session is going to be on 3rd, so 3rd, like I'll myself be there, and the person leading it will be Meena Agarwal. She will be leading that session. सो लीडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि उनकी जिंदगी अब फंस गई है और वो कहीं जा नहीं सकती हैं, ऐसा नहीं होता है। जब वो कभी नहीं ले पाएंगी तो और भी वॉलंटियर्स हैं, हो सकता है वो उस वक्त प्रियंका को बोल दें कि आप आज ले लो बिकॉज आई एम बिजी, सो ये चलता है। बट येस, इट इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सेशन अच्छे से एग्जीक्यूट हो, सब कुछ हो। So this we are starting from 3rd, so please share this with all grandparents and anyone who would want to be part of it. And with that intention, again, I am yet to write intentions for that group and that, because कल रात को ही हमने ये सोचा था ऐसा, मतलब मैं आपसे कुछ टाइम से बोल रही हूँ कि मुझे करना है, बट वो होता है ना, देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम, एंड देन यू हैव टू आस्क योर सबकॉन्शियस दैट व्हेन शुड वी स्टार्ट, व्हाट टू डू, किस तरह से एग्जीक्यूट होने हैं, बहुत सारी चीजें डायनेमिक्स होते हैं उसके, तो वो सब। सो फाइनली इट इज फ्रॉम 3rd September 8:15 to 8:45, led by Meena Agarwal. And so please inform everybody. The Zoom link remains the same for all, the username, password, the link, direct entry remains the same, and all these groups are free of cost. So सब बहुत engage, बहुत लोग, मतलब मेरे अलावा मुझसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग ग्रुप पे हैं, सब हैं, सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम कर रहे हैं, बट हम ब्रह्मांड के एम्प्लॉयज हैं और हमें वहीं से सैलरी मिलेगी, ये बात तय है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। सो वी गो टू द अदर बुक नाउ। Yeah, so this is creative visualization by Shakti Gavain. तो I think कल हमने नया चैप्टर शुरू किया था, कल मैं partially connected थी, but मैं immigrations पे थी तो I had to log out. So this is called the spiritual paradox. मतलब ये spiritual paradox basically यही है कि कभी कभी डाउट होता है हमको कि कैसे होगा, मतलब क्या मुझ में ये पावर है, मेरी तो, मैं तो, मतलब कुछ, हमने अपने आप को इतना प्यार तो कभी दिया नहीं है, हमने अपने आप को द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह कभी ट्रीट ही नहीं किया है। आप ट्रीट कर रहे हैं, अभी सीख सीख के कर रहे हैं, अब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगे। अब हमें पता है कि धीरे धीरे, मतलब हम, क्योंकि बहुत टाइम से, देखो किताब जब लिखी हुई होती है ना, कोई भी ऑथर जब किताब लिखते हैं तो वो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ी लिखी होती है कि हम 3.5 साल से मैजिक जर्नी में हैं और वो सब, और हमको बहुत कुछ पता है, हमने बेंटिनो मैसारो की ये किताबें भी पढ़ी है, हमने पावर भी पढ़ी है, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं अभी तक, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड भी पढ़ ली है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट हमको अभी प्रिटी मच ये पता लग गया है कि हमें एक इनेट पावर है जिससे हम कोई भी सिचुएशन टर्न अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी हम गिरते हैं, बट दैट्स ओके, ह्यूमन तो रहेंगे ही ना, तो इमोशंस कभी डोमिनेट करते हैं, बट कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, सो वो इसके बारे में कि कभी कभी ये पैराडॉक्स आ जाता है कि
लाइक हम क्योंकि हिंदुस्तानी है तो मैं आपको वैसा वाला एग्जांपल दूंगी तो आप सब समझ जाओगे कि हम जैसे कहीं पे धागा बांध के हम धागा बांध देते हैं जाके मंदिरों में या फिर कहीं पे दरगाह शरीफ जी पे जाके या कहीं पे, है ना, धागा बांध के आ गए। अब ये इस तरह के हमारे मन में ना वो चीजें होती हैं कि मेरी ना मन्नत पूरी हो जाएगी, मतलब वो भगवान से भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, कि आप मेरी मन्नत पूरी करो, मैं ये धागा बांध के जा रही हूँ और जब आप मेरी मन्नत पूरी करोगे तो मैं वापस आके इसको खोलूंगी। जस्ट इमेजिन, मतलब यूनिवर्स को भी बिजनेस बिजनेस ही कर दिया है कि आप दो फिर मैं आके करूंगी, है ना। तो इस तरह के हमारे दिमाग में बहुत सारे, मतलब ऐसे कभी कभी तो फितूर की तरह होता है, समटाइम्स आई सी दैट ऐसा ऐसा है, मतलब हेल्थ खराब होती है लेकिन व्रत करने हैं, ठीक है। अब डॉक्टर ने मना किया है कि आपका ब्लड प्रेशर का चल रहा है, आपका ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन वो व्रत उपवास में कोई कमी नहीं आएगी, पूरे पूरे दिन खाली पेट चलते रहेंगे, क्योंकि ये सोच के कि नहीं जी ये तो ये नहीं करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इंडिया में डेफिनेटली वो ईस्टर्न वेस्टर्न ओरिएंटल फिलोसफीज होती है व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, लेकिन हम तो जकड़े हुए हैं, मतलब हम हमारे तो वो शैकल्स लगे हुए हैं उन सब चीजों में कि ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा, अब इतने सालों से मैंने ये व्रत किया है तो अभी मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मतलब मैं अपने एनवायरनमेंट में देखती हूँ तो अभी वो कुछ सावन के फास्ट वगैरह चल रहे थे तो मंडे को सब फास्ट, ठीक है, जब तक बॉडी अलाउ कर रही है आप करो, चलो फास्टिंग हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, जो भी स्पिरिचुअल कनेक्ट है वो होगा डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन अब हेल्थ में ब्लड प्रेशर लो हुए जा रहा है, ठीक है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अगला उठ के ऑफिस आ पा रहा है, या ऑफिस में भी आ रहे हैं तो ऐसे सिर भारी लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है। तो हम इस तरह की चीजों में फंसे हुए हैं कि मैं ऐसे करूंगी तभी ऐसा होगा, मैं ऐसे करूंगी, नो, दैट मीन्स आप बाहर की दुनिया से इतने स्ट्रांगली शैकल्ड हो, मतलब आपकी बेड़ियां लग गई हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही नहीं हो रही है अंदर। स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होती है? बीइंग कनेक्टेड टू योरसेल्फ, ठीक है, अपने सबकॉन्शियस को, लाइक आस्क योर ओन सबकॉन्शियस टू लीड यू, गाइड यू, डायरेक्ट यू, हैव फन विथ यू, रेवल विथ यू एंड टेक यू अलोंग द वे, राइट। बाहर से कोई शक्ति नहीं है। हाँ, वो चीज भी अगर आप किसी मूर्ति के सामने भी बैठे हुए हो ना तो वो आपके अंदर के जो भगवान है ना उनको एक्टिवेट, मतलब वो भी अंदर का फेथ अराउज हो रहा है, उसमें भी अंदर ही काम चल रहा है, बाहर से कुछ काम नहीं होता। सो दिस इज व्हाट, और हमको इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं देना है, लाइक इंस्टेड लोगों को अपने आप से कनेक्ट करना है। जब स्टीव जॉब्स भी थे, जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी तो वो अपने आप से कनेक्ट होने के लिए इंडिया आए थे ना, 6 महीने रहे, मेडिटेशन करना सीखा, तो क्या उनके पास नहीं थे दुनिया के सबसे बड़े चर्चेज में जाने का एक्सेस? था ना, जो सबके पास है, जितने भी महान लोग थे, चाहे आइंस्टीन थे, न्यूटन थे, है ना, उन सबके पास था ना कि बाहर वो जाके किसी बड़े बड़े मंदिरों में और वहां जाके, या बेस्ट ऑफ द चर्चेस जो है अराउंड द वर्ल्ड, वहां जाके वो अपनी ऑफरिंग्स दें, ठीक है, वो सब भी करते होंगे, बट इवेंचुअली जब भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो अपने अंदर ही झांक के देखना होता है कि कहाँ पे वो ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है जो मुझे हटाना है, जिसके कारण बार बार मेरी तबीयत खराब हो रही है, या मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, या मैं इनसिक्योर हूँ, तो मुझे अंदर जाके झांक के देखना है कि कौन सा एरिया है। तभी भी मैं यही बोलती हूँ, मेडिटेट एंड नो द रीजन। मेडिटेट करो, पूछो अपने पूछो यूनिवर्स से, यूनिवर्स तो अंदर ही आत्मा ही है आपकी, परमात्मा, वहां से जवाब आ जाएगा। तो आप पूछो अंदर से, व्हाई इज इट, व्हाई यूनिवर्स, टू द डिवाइन पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, व्हाई एम आई गेटिंग सिक सो ऑफन, प्लीज गिव मी द रीजंस, एंड यू आपके सामने आ जाएगी वो चीज कि कौन सी आपका वो टेंडेंसी या ट्रेट है अंदर जो आपको पॉलिश करने की जरूरत है ना। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो स्पिरिचुअल पैराडॉक्स, पूरा चैप्टर इन अ नटशेल इसी तक ये है, दैट हम लोग ना कहीं पे फंसे हुए हैं इन सब चीजों में, एंड उस चक्कर में इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। अब अटैच्ड होने का मतलब होता है कि वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग अ पर्सन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, या फिर हम वो अटैच्ड हो गए अपनी उस ऑफिस में, उस पोजीशन से कि मुझे ग्रुप जनरल मैनेजर बनना है, जीजीएम बनना है यहाँ का, और अभी आप में भी जनरल मैनेजर हो, तो इतनी अटैचमेंट हो जाती है उस कुर्सी से, ठीक है, तो आप अपने आप को भूलने लग जाते हो। सक्सेस ऐसे आती ही नहीं है ना। सक्सेस जिन भी लोगों के पास आई है, हमने उनकी कहानियां पढ़ी हैं डे जीरो वाले चैप्टर में, मैजिक बुक में, कि कैसे आई है ना, बाय एम्पावरिंग योरसेल्फ। सो दैट इज हाउ easy and effortless it is, but we have complicated it, so that's what it is like. So I think हमको यहाँ से पढ़ना है, सुना है ना, आप ही ने कल पढ़ा था ना? हाँ जी। most of us, चलो आप यहीं नहीं, से पढ़ This is the state of being from which most of us are. नेक्स्ट पे This is the state of setting goal, it is a state of being. हाँ, yeah. यहीं से
ठीक है आप पढ़ो. Okay. Am I audible, na? हाँ, loud and clear. Okay. This is the this is the state of being from which most of us are setting goals and trying to create what we want in life. And unfortunately, from this level of consciousness, it doesn't work at all. Either we set up so many obstacles for ourselves that we cannot succeed, or we do succeed in reaching our goals only to find that they don't bring us inner happiness. It is at the point where we realize this dilemma that we begin to open to a spiritual path. We realize that there simply has to be something more to life, and we begin to search for it. We may go through many different experiences and processes on our search, but eventually we are gradually restored to ourselves. That is, we come back into an experience of our spiritual essence, the universal energy within us all. Through this experience, we can be restored to our spiritual power, and the emptiness inside us is filled up from within. Yeah. Now, So basically okay. it means 1 second सुना है. So basically it just says about वही जो मैंने आपको बताया था अभी, that वही है कि ये like इज्जत, पावर, पैसा, यही सब कुछ नहीं होता है जब तक अंदर से. बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिनके पास सब कुछ है जिंदगी में. पैसा हाँ है, इतना है कि सब कुछ हो जाता है बहुत आराम से. घर है हाँ ठीक है, गाड़ी है अपनी खुद की हाँ जी है, ठीक है, बिजनेस सही चल रहा है हाँ है, ठीक है, सब है, लेकिन अंदर से खुशी नहीं होती है. There is always that kind of feeling of unhappiness within. So it is not always that जो चीज आपको चाहिए, सपोज कि नया बिजनेस शुरू करना है, सपोज कोल का बिजनेस शुरू करना है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से तो अनहैप्पी है ना. मतलब कई बार आप देखोगे तो बहुत अजीब सा आपको बिहेवियर लगेगा उस पर्सन से, बिकॉज दैट पर्सन इज सो अनहैप्पी, दैट इज गिविंग लाइक वेरी रूड विद एवरीवन. सो वो स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट नोइंग योर पावर विद इन. दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. तो इसमें भी ये लिखा हुआ है कि ठीक है, बाहर से अगर कोई चीज आती रहेंगी, आपको और अभी 1 करोड़ चाहिए, वो भी आ जाएगा, चलो एक और आ जाएगा, लेकिन अंदर से जो खुशी, जो मतलब रात को नींदें नहीं आती है. ठीक है, पैसा हो जाता है लोगों को, रात को नींद नहीं आती है. कई लोगों के पास हेल्थ बहुत अच्छी है लेकिन रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, तो क्या वो खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी. सो लाइफ में सब कुछ अगर मतलब इट इज एवरीथिंग इज एट ऑटोमेटेड, बट प्रोवाइडेड आप अपने आप से कनेक्ट हो, दैट यू नो दैट डिवाइन पावर ऑफ द सबकॉन्शियस इज विद इन यू. और वो तभी होता है when you also constantly become a better person. That means you learn to live in gratitude and love, है ना. मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की चीजें होती है, जो फीलिंग्स होती है, तो हमारे फीलिंग चार्ट में इसीलिए वो जो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर जो सारा है, अगर उस फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं, दैट विल स्टार्ट गिविंग अस इनर हैप्पीनेस, जो हम अब डिस्कवर कर रहे हैं, है ना. बिकॉज लाइफ हैज सो मच टू ऑफर. वो तो हम अपना एक छोटा सा टीस्पून लेके खड़े हुए हैं, अब उतना ही तो मिलेगा, है ना. तो अपना वेसल का साइज इंक्रीज करने के लिए हमको अपने आप से कनेक्ट होने की बहुत जरूरत है. यानी कि इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, आप थैंकफुल रहो दैट एनीथिंग दैट यूनिवर्स हैज टू ऑफर टू यू. ठीक है, अगर कुर्सी भी मिली है ना बैठने के लिए, बहुत सारा थैंक यू बोलो. ठीक है, अगर आप सपोज मेट्रो में जा रहे हो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रश और आपको जगह नहीं मिली, आपको खड़े होने की जगह मिली है ना, बहुत सारा थैंक यू बोलो. ये मत सोचो कि इतनी इतनी जगह फैल के बैठे हुए हैं बाकी लोग एंड दे कैन स्क्वीज, आई कैन ऑल्सो अकोमोडेट माई सेल्फ, नहीं. छोटी छोटी चीजों के लिए जब ग्रेटिट्यूड हमारा वे ऑफ लाइफ होता है, दैट मीन्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है, जैसे हम सब की हो रही है. सो वी कंटिन्यू स्टडिंग फर्दर. 1 सेकेंड. हाँ जी. Now to get back to our supposed paradox. When we are coming out of the empty, grasping, manipulative condition, the first and foremost lesson to be learned is just to let go. We must relax, stop struggling, stop trying so hard, stop manipulating things and people. Try to get what we want and need. आपकी आवाज फिर से चली गई है, मतलब वो ऊपर नीचे हो रही है. मैंने एक बार वीडियो ऑफ कर दूं, चलेगा? हाँ कर दो.
अब दोबारा से पढ़ो। हाँ, When we are दोबारा से coming out. पढ़ती हूँ। अब बेटर है? Okay. Now to get back to our supposed paradox. When we are coming out of the empty, grasping, manipulative condition, the first and foremost lesson to be learned is just to let go. We must relax, stop struggling, stop trying so hard, stop manipulating things and people to try to get what we want and need. In fact, stop doing so much and have an experience of just being for a while. When we do this, we suddenly discover that we are really perfectly okay. In fact, we feel quite wonderful just letting ourselves be and letting the world be without trying to change things. This is the basic experience of being here now, and it is what the Buddhist philosophy means by letting go of attachment. It is similar to the Christian concept, God's will be done. It is a very freeing experience and a most basic one on any path of self awareness. Once you have begun Once you have begun to have this experience more and more often, you are opening up the channel to your higher self, and sooner or later, a great deal of natural creative energy will begin to flow through you. You start to see that you yourself are already creating your whole life, and every experience that happens to you and you become interested in creating more rewarding experiences for yourself and others. You begin to want to focus on your energy toward the highest and most fulfilling goals that are real for you at any given moment. You realize that life can be basically good, abundant, and often fun, and that sorry, कुछ and that having what you truly want without struggle and strain is part of your natural birthright as a function of just being alive. This is the time when creative visualization can become a most important tool. Yeah, so Sunaina will be able to read only so much today, but कल वो उसका पूरा process का वो होगा, like Okay. example है, तो ये मतलब topic continue रहेगा, तो इसको run through करना पड़ेगा हमें. So इसमें ये है that अगर कोई भी चीज, देखो obviously सीधी सी बात है, अगर आपने अपने आप को पिन से अटैच कर रखा है किसी भी और चीज पे, हो सकता है वो आपने लाइक यू नॉट लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, आपको अपने कपड़ों से अटैचमेंट है, ठीक है, वो पिन हुक लगा हुआ है, एक हुक, आपको आपकी जिंदगी, आपकी आपकी लाइफ है और वो आपकी वार्डरोब है जिसमें बहुत महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी साड़ियां, महंगी महंगी ज्वेलरी है, ठीक है, आपने अपने आप को उससे हुक कर रखा है. आप उड़ पाओगे कभी भी नहीं ना, क्योंकि आप अटैच इतने ज्यादा हो कि यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई इन लाइफ, यू विल नॉट बी एबल टू सेव द रियल जॉय ऑफ लाइफ, बिकॉज आप अब आपने किसी पर्सन से अपने आप को अटैच कर रखा है कि आपकी सारी खुशी उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, फिर आपने अपने आप को हुक कर रखा है उससे. सो इजंट इट, आपने हुक कर रखा है तो आप फ्लाई नहीं कर पा रहे हो. फिर उसके बाद तीसरी चीज, ठीक है, कोई कोई भी और हो सकता है कि आपने पैसे से अपने आप को अटैच कर रखा है, मेरे पास इतना पैसा आएगा तभी मुझे रियल खुशी मिलेगी क्योंकि मुझे बहुत पैसा चाहिए, पैसे से आपने हुक कर रखा है अपने आप को, ठीक है, फिर आप नहीं उड़ पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सेव द रियल जॉय ऑफ लाइफ, क्योंकि पीछे से हुक किया हुआ है आपने अपने आप को, isn't it? So इसीलिए fly and savor the best of life. There are beautiful things waiting. सबको प्यार करो, इज्जत दो, बहुत like co-create. They are all co-creators in your life. जैसे अब्राहम हिग्स बोलती है ना अपने उसमें बुक्स में, that they are all co-creators for you. तो वो सब है, साथ में रह रहे हो, सब है. देर इज दैट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमको भी करने हैं, वो सब अलग चीज होती है, बट इतना अटैच कि आपकी ग्रोथ उसकी वजह से स्टंट हो रही है या रुक रही है, क्योंकि आपकी खुशी बाहर से आती है, आप अंदर से खुशी ला ही नहीं पा रहे हो,
ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है कि आपकी रियल ग्रोथ तभी होगी जब हम इन चीजों को, तो उसके लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा। आप मेडिटेट करके लेट गो कर सकते हो। व्हेन यू सिट, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड सी दैट अटैचमेंट गोइंग अवे। नॉट दैट पर्सन इज नॉट गोइंग अवे, ठीक है, बट अटैचमेंट इज गोइंग अवे। सो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ, सो माय सन लिव्स इन, यंगर वन लिव्स इन बैंगलोर। सो कुछ टाइम से मैंने आपको बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैंने बहुत ब्लेसिंग्स लिखी, सब लिखा, बट ये उसका प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन था। ठीक है, अगर उस तरह से अगर मैं बहुत अटैच्ड पेरेंट होती तो एक दिन ऐसा आया कि वो मतलब लिटरली ही हैड टू गो टू हॉस्पिटल। आई डिड नॉट टेल एनीबडी, ठीक है, ही आई एक्सपेक्टेड हिम, उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो बेड से उठे, ठीक है, बट ठीक है, बड़ा हो गया है, अब उसको करना पड़ेगा ये सब, एंड इट वाज ही चोज एंड दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू लर्न। वो बेड से भी नहीं उठ पा रहा था, एंड आई कैन बी प्लीज म्यूट। सो ठीक है, तो वो अपना ही टू अपने हॉस्टल से वो बाहर गया, उसने ऑटो लिया, कुछ नहीं खाया पिया बिकॉज एपिटाइट बिल्कुल थी, फीवर हाई था उसका। वो हॉस्पिटल गया, ही वेंट टू अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल, वहां पे वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स देयर इन बैंगलोर। पहुंचा, उसने अपॉइंटमेंट ली जिसपे 149 नंबर था उसके टोकन पे, ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने का। और उस वक्त सुबह 10:30-11 बज रहे थे, उसका नंबर आया 4:45। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द होल डे, नो वाटर, नो फूड, हाई फीवर, दिस दैट, ठीक है। we could have easily taken a flight and gone, कोई भी चला जाता, my elder one could have gone, I could have gone, but we deliberately didn't because he had to learn, इसको इस process of evolution को go through करना पड़ेगा, ठीक है। so that is real love. Love is not कि आपके बच्चे को पिज्जा चाहिए और आप ये ऑर्डर कर दो। can we please mute ourselves guys? मैम आई एम म्यूटिंग देम, वो बार बार मनीष का ना अनम्यूट हो जा रहा है, मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ। होनी को ध्यान रखना है ना, दिस इज लाइक सबको अपना ही वो। सो दिस इज लाइक, सो अटैचमेंट है तो ऐसा तो नहीं है दैट आई डोंट लव माई चाइल्ड, इज माई चाइल्ड, आई हैव गिवन बर्थ टू हिम, नो। लेकिन नो, आई मीन लाइक अब वो जाके ठीक हुआ है ऑल दीज डेज लेटर, लाइक अब वो इस सिचुएशन में आया है, सो यू हैव टू लेट देम बी, नॉट दैट ओ ये हो गया है 50 बार फोन कर करके बच्चे से बात करना। माँ बाप बहुत ऐसा, अगर बच्चे बाहर रहते हैं, बस दिन में एक बार बात कर लिया, हाँ सब ठीक है, इट इज देयर, इट इज ओके, इट इज डन। तो वो बच्चा अपनी अपॉइंटमेंट लेके उसके बाद से आज दिन तक वो कॉलेज नहीं गया है अपने, ठीक है, वो मतलब बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं, इवन लास्ट टू लास्ट फ्राइडे। और तब से लेके वो डॉक्टर से उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए, मतलब यू नेम इट, इंक्लूडिंग ईसीजी एंड पूरा उसका चेस्ट का अल्ट्रासाउंड और एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड हुआ, लोअर एब्स का, हर हर जो लाइक जो टेस्ट था वो सब, पूरा यूरिन एनालिसिस हुआ, ये हुआ वो हुआ, फिर डॉक्टर के पास गया, फिर रिपोर्ट्स कलेक्ट करने भी गया उसके थोड़े दिन बाद, तो आज तक नहीं गया है कॉलेज, आई थिंक अबाउट 8-9 डेज हो गए। बट ऐसी अटैचमेंट थोड़ी होती है कि दूसरे की ग्रोथ स्टंट कर दो, तभी तो बच्चे बिगड़े हुए हैं आजकल के, तभी तो उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, मतलब। और ये इसीलिए दे यूज ड्रग्स एंड ऑल दीज थिंग्स, जब वो बड़े हो जाते हैं फिर अब उनको उस तरह का तो वो मिलता नहीं है ना। अभी तक तो उन्होंने बोला और उनके सामने पेश हो जाता है, अब उन्होंने बोला उनके सामने पेश हो जाता है, उनको कॉफी चाहिए वो उनको मिल जाती है, अब ये किया है वो उनको मिल जाता है, तो उनकी ये आदत पड़ जाती है। Even if it is for us, because we've always lived in the world of luxury, all of us. So the moment we are on our own and we don't get that, तो अब वो है कि डोपामिन किक कैसे होगा, वो तो डोपामिन किक होता है ना, जैसे मुझे भी मैगी खानी है और मैंने बना के खा ली तो मेरा डोपामिन हैप्पी हार्मोन निकल गया, तो डोपामिन किक की आदत पड़ जाती है। अब उनको सिगरेट, दारू, ड्रग्स ये सब लेने पड़ते हैं डोपामिन किक के लिए, बिकॉज उससे भी आपको वही फीलिंग आती है, ठीक है। तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो ये अटैचमेंट्स हमारे एनवायरमेंट, मतलब हम उनको रियल ग्रोथ ही नहीं दे पा रहे हैं। हाँ उस वक्त लगेगा, व्हेन माय एल्डर वन वाज डूइंग इंटर्नशिप, तो मुझे बहुत ये था कि उसको ना बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस मिले और जो उसको खूब काम कराए, उसको ओवरस्टे कराए। मैं तो नहीं मांग रही थी कि बड़े लग्जूरियस एनवायरमेंट मिले उसको, बड़ा अच्छा। आई वॉन्टेड हिज कैरेक्टर टू गेट पॉलिश्ड, उसको पता लगना चाहिए कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसे होते हैं। यूथ एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, तो उस वक्त अच्छे से ट्रेनिंग लोगे तो आपकी आगे की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं उल्टा प्रे कर रही थी, मैं सबको यही बोल रही थी कि सब सोचते होंगे कि किस तरह की माँ है ये, लाइक शी इज आस्किंग फॉर अ वेरी स्ट्रिक्ट बॉस एंड समवन हु इज रियली वंडरफुल एज अ पर्सन बट स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ वर्क, जो उसको बहुत मतलब ठोक पीट के ठीक कर दे।
उसको ओवरस्टे कराए, बिकॉज यू नो लाइक टू वर्क इट वाज इम्पोर्टेंट दैट यू नो एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड एज यूथ he should learn from the best of the mentors, and even if he has to you know like learn something like 5 बार उसको अपनी वो ड्राइंग्स बनानी पड़े, so he's an architect, तो 5 बार उसको अपनी ड्राइंग वापस वो बिल्डिंग डिजाइन करनी पड़े, so be it is like that. So attachment ये होनी चाहिए, ओ मेरा बेबी you know, so we are never going to let them grow like that, you know, उस तरह की. So ये छोटी छोटी चीजें हैं हमारी जिंदगी में भी, इस तरह की मतलब ऐसे अटैचमेंट्स है जो हमारी ग्रोथ को स्टंट कर रहे हैं. हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या है, लेकिन अपने आप को हमने हुक किया हुआ है चीजों से, जिसके कारण हम पीछे बार बार पीछे आना पड़ता है, कदम ही आगे नहीं ले पा रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट. इसीलिए जब मैं वहां पे थी थाईलैंड में, तो मैंने आप लोगों को बोला था ना एक बार, अपनी जिंदगी को डीक्लटर करो. ठीक है, यहाँ से शुरुआत करो कि अपनी सारी एक्सपेंसिव साड़ियां जो आपने 2 साल से नहीं पहनी है वो किसी को दो. स्टार्ट फ्रॉम देयर. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी. तो कल शाम को आके मैंने भी यही किया था, जब कल मैं आई थी तो मैंने भी यही किया. मैंने अपने सारे, मेरे इतने कपड़े हो गए थे, you know that firstly when I was there, normally people jaake they go berserk about shopping and all. I did not shop, no clothes from there, nothing from Thailand or you know whatever. So इसलिए क्योंकि मुझे था कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत है. ये स्टेज मेरी पहली बार आई है कि मैं कहीं जाके कपड़ों की शॉपिंग नहीं कर रही या शूज की नहीं कर रही. ठीक है, एंड देन व्हेन आई केम बैक आई decluttered to begin with. So decluttering needs a lot of change in your inner heart, है ना. अगर मैं किसी को 40,000 रुपए की साड़ी जो मैंने आज से 10 साल पहले खरीदी थी, अगर मैं किसी को दे रही हूँ, 10 साल पहले 40,000 बहुत सारे पैसे होते थे. ठीक है, सो 40,000 की साड़ी अगर मैं किसी को दे रही हूँ, सो इट रिक्वायर्स माई इनर पॉलिशिंग. ओके, दैट मीन्स आई हैव लेट गो. वो लेट गो वाली फीलिंग है ना, वो हमारी जिंदगी का लेंस चेंज कर देगा. एंड देन यू विल सी दैट नाउ, अब आपकी जो चम्मच लेके यूनिवर्स के सामने खड़े हुए थे ना चीजें मांगने के लिए, वो दैट चम्मच का साइज विल इंक्रीज अपने आप से. Okay, so do those very important things. People are so attached to money and forget, I mean these are clothes. आप क्लोथ्स को बोल दो कि थैंक यू जी, आपको मेरे पास रहने का टाइम खत्म हो गया, अब आप किसी और के यहाँ पे जा रहे हैं, और ये क्लोथ्स, और जिसके घर में भी जहां पे भी ये कपड़े जाएंगे मेरे, उस पर्सन की लाइफ में बहुत ग्रोथ और बरकत आएगी, खूब फ्लरिश करेंगे ये कपड़े या जो भी है, ज्वेलरी या जो भी आपको देनी है, जस्ट गिव अवे. ठीक है, शूज हैं चाहे कोई बात नहीं, बहुत महंगे थे, आपने किसी कंट्री से खरीदे थे, ग्रेट, लेकिन पहने तो नहीं है ना 2 साल से, दे दो उनको. ठीक है, वो देने के लिए. टीवी है नहीं चल रहा है बहुत सालों से, हर चीज पैसे से नहीं देनी होती है. ये सारी स्टक एनर्जीज होती है जिसके कारण हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है. ठीक है, सो वो वी वांट दैट क्रिएटिव एनर्जी नहीं फ्लो करती है जब तक एनर्जी स्टक होती. क्रिएटिव एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, इट्स क्रिएटिंग. ओके, सो स्टक एनर्जी से जितना दूर, ये जो भी चीज आपके घर में है जो आप नहीं यूज कर रहे हो, उसको हटाओ घर से इमिडिएटली. वो स्टक एनर्जीज हैं, वो आपकी ग्रोथ नहीं होने देंगी. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. सो या, दैट इज ऑल वी हैव टू शेयर फॉर टुडे. एंड थैंक यू सुनैना फॉर रीडिंग, थैंक यू. सो हियर इज अ मेटाफोर से हम कल शुरू करेंगे. मेटाफोर का मतलब होता है वैसी सिचुएशन क्रिएट करके एग्जाम्पल देना. एग्जाम्पल, इट मीन्स एग्जाम्पल. ठीक है, तो वो हम कल पढ़ेंगे कैसे करना है. बट लर्न टू लेट गो ऑफ द थिंग्स एंड डोंट लेट योर एनवायरमेंट डोमिनेट यू एवर. ठीक है, दीज आर 2 लर्निंग्स. पहली चीज, लेट गो करो चीजों को, जिसमें आप मेडिटेट करो, सांस लो एंड सी दैट थिंग गोइंग अवे. ठीक है, एक इनर पीस और एक you know you will feel very powered after doing that and this is what we need to do. और लेट गो जैसे मैंने तो बहुत छोटी सी चीज से कराई, कपड़ों से करना शुरू करो. ठीक है, कपड़ों से करना शुरू करो. ओके, दैट इज हाउ. बहुत बहुत मैंने देखी अटैचमेंट, कपड़े, शूज एंड बैग से जो लोगों की अटैचमेंट होती है, it is like that will never let you grow. It's all stuck energy. There are bags we have not used for years. इतने सारे बैग हर बार खरीदते रहते हैं, हर बार खरीदते रहते हैं. ठीक है, वो रखे हुए हैं, यूज वही करने हैं, गिन के 4. ठीक है, लेकिन 10 पड़े हुए हैं, उन 6 को दे दो चुपचाप. आप देखना कि कैसे आपको छप्पर फाड़ के पैसा आएगा, कैसे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी. स्टक एनर्जी आपकी हर चीज को अफेक्ट कर रही है ना. सो वो हेल्थ में आपको असर दिखेगा, आपको अपनी ग्रोथ में दिखेगा, आपको अबंडेंस में दिखेगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी. आप यू नो लाइक वट एवर इट इज, जो कुछ डिजायर था वो अपने आप चल के आपके पास आएगा. इतना फर्क पड़ता है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी. एवरीथिंग इज एनर्जी.
If somebody is there spending time with me, it is my energy that we are giving. Haven't we seen? YouTube पे देखना और सुबह के टाइम सेशंस करने में जमीन आसमान का फर्क होगा. YouTube पे वो एक हो जाएगा कि हाँ जी एक रिचुअल पूरा हो गया क्योंकि सुबह आंखें नहीं खुली थी, ठीक है, तो वो रिचुअल पूरा हो गया. लेकिन सुबह आपको ये एनर्जी जाएगी और आपकी जिंदगी में चेंज आने लग जाएगा. सो पीपल जो लोग सुबह उठ के सेशंस करते हैं उनकी जिंदगी में बहुत जल्दी बदलाव आएंगे क्योंकि सारी एनर्जी ही वैसी होती है, ठीक है, कंपेयर टू पीपल जो यूट्यूब पे देखते हैं. हाँ यूट्यूब पे देखते हो, ग्रेटिट्यूड में रहते हो, वो सारी बहुत बढ़िया है, बट या इट डज मेक अ डिफरेंस. सो दैट इज हाउ इट इज. और बाय द वे मोहित जी, मुझे आपकी शेयरिंग बड़ी अच्छी लगी थी आज. मुझे भगवान करे कि खूब अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट रोज शालिनी को मिले आपके हाथों से बनाया हुआ ऑन एंड ऑफ. और आप हमें भी बुलाएं ब्रेकफास्ट में. Most बहुत लोगों welcome, को अपने always. दोस्तों आपके हाथ का बना हुआ ब्रेकफास्ट. जरूर मैम, जरूर. दीप्ति, हेलो मैम. सारे हस्बैंड सुन रहे हैं, आई होप उन्होंने अपनी बीवी के लिए ताजा ताजा बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाया. मेरा हस्बैंड बोल रहा है कोई इसको भी बोलो ये भी बना दिया करे. नहीं नहीं, वो सारे मैन फोक के लिए है. वो मेंस डिवीजन का शेयरिंग का. Deepti ma'am, Dr. Deepti ma'am. Yes. Actually, today I am in ISKCON and Lalita ji is with me and she is Namaste Lalita ji. Namaste, Deepti ji. She is chemistry teacher. Introduce yourself. I'm assistant chemistry teacher in MRV school, Secretariat Oh Dwarka. wow, wonderful. Thank you for being there and listening to us and hope to see you again. थैंक यू प्रीति की उसने मुझे आप लोगों से प्रिया इंट्रोड्यूस कराया. आप लोगों से इतनी अच्छी उससे मैं इंट्रोड्यूस हो रही हूँ. थैंक यू वेरी मच. ऑलवेज वेलकम. हम रोज 6 से 7 ये सेशंस करते हैं. कभी भी आपको करने का मन हो, प्रिया आपको लिंक दे देंगी. ये रेगुलर हैं सेशंस में और एक्चुअली ये यूट्यूब पे भी जाते हैं तो आप उस पे भी देख सकते हैं. यूनिवर्स का ना सम्राट पैदा होने वाला है 7 तारीख को, तो आपके लिए स्पेशल इनविटेशन. सारे लोग वेट कर रहे हैं आपका कि सब ग्रुप के साथ आइए. हम ब्लेसिंग से अपने आप को इनवाइट करवाएंगे ना, मतलब हमारी प्रेजेंस ब्लेसिंग्स के साथ आपकी बहुत नीड है यहाँ पे. सारी दुआएं. एक कॉर्पोरेट डॉक्टर हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इनविटेशन दिया है आपके लिए. और मुझे बताओ कि कहाँ आना है तो मैं इनवाइट ब्लेसिंग से हम ब्लेसिंग अपने ब्लेसिंग्स आपकी जगह पे भेजेंगे. इन फिजिकलिटी आई मे नॉट बी एबल टू कम, बट बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और जो भी वेंचर है, जो भी काम है, वो सक्सेसफुल रहे. दैट्स ऑल. So thank you so much, Priya, for introducing, your friend. दीप्ति, थैंक यू. दीप्ति, I want to ask one thing. वो जो हाँ जी. रुपी नोट वाला, जैसे I'll make a new one, तो I can give the blessed वाला लिखा हुआ to my kids. They can keep it in the purse, ना? हाँ No. हाँ, of course. क्योंकि पर वो उनके blessed हाथ से होना चाहिए, because it's not just about नोट पे स्टिकी लगाना. It is also about think back from बचपन से childhood till now, that कहाँ पे, that's like more important than just doing the act of. So it has to be combined. बट हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, खूब सारी ब्लेसिंग्स उसमें डाल के आप अपने बच्चों को आगे एज अ गिफ्ट दे सकते हो. दे कैन पुट इट इन देयर वॉलेट. खूब सारी ब्लेसिंग्स. Yeah. Because already every day I bless it twice or thrice. I keep it on. हाँ, नहीं, tell them to put in their wallet. You can do that. Okay. Do that. But it's not necessary to give to the staff. I give it to my staff. Is it okay? Yeah, I Yeah, also yeah. do that only. I also give to my staff only. So, but then yes, आप bless करके अपने बच्चों के wallet में भी रखवा सकते हो, provided they believe in everything, Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Deepti. Yeah, thank you. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank you so tomorrow much, morning. ma'am. Bye bye. A beautiful Bye. session. Thank you, ma'am. Good day, everyone.